تو میں عرض کر رہی تھی کہ ان سے یعنی کہ پوچھا جائے گا بھی تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ فرشتے پوچھیں گے تم اتنا جانتے ہو سب کچھ کیسے؟ تو وہ کہے گا کہ یعنی کہ جب ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ مجھے جو ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ سب کچھ پڑھا ہے، تو میں اس کتاب پر ایمان لایا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ پھر اب آسمان سے کیا ندا آئے گی کہ یہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب حکم جاری ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا حکم جاری ہوگا؟ یہ جاری ہوگا کہ اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھول دو، اس کے پاس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آئے گی، اور حد نگاہ تک اس کی قبر میں توسیع کر دی جائے گی، تا حد نگاہ اس کی قبر توسیع کر دی جائے گی۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت شخص آئے گا جس کا لباس بھی بہت حسین ہوگا اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوگی۔ وہ کہے گا تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہے گا تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو بہت حسین ہے۔ اب مردہ کہے گا اور خیر انگیز ہے کہ وہ کہے گا یہ میں تمہارا ایک نیک عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ یعنی کہ اس کو اس قدر خوشی ہوگی کہ میں یعنی کہ قبر میں رہنا اس کو پسند نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا بس اللہ تعالیٰ مجھے بس جلدی قیامت برپا کر۔ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے دنیا سے آنے سے پہلے وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے نکلنے کی میرے یعنی کہ دنیا میں آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو میرے خاندان میں میری فیملی میں کسی کو مار دے، کسی کو موت دے تاکہ میں اس تنگ سے نکلی تنگی سے نکلوں اور میں نجات پاؤں اور میں دنیا میں آؤں۔ لیکن جو قبر کے اندر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ قیامت برپا کر تاکہ ہم اپنا انجام دیکھیں، جو بھی ہے ہمارے جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے ہمارا انجام، تو ہمیں قبر سے تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ اللہ پاک قیامت برپا کر تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ مال اس کو کیا؟ اس کی جنت، اور اہل وہ حوریں جو غلمان اس کو دیے جائیں گے، وہ جنت کی تمام نعمتیں، وہ محلات۔ یا اللہ قیامت برپا کر تاکہ میں اپنے اہل اور اپنے مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کافر دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ حدیث مبارکہ مومن کے متعلق تھی، جو مومن مسلمان ایمان والا دنیا سے جاتا ہے اس کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ کیسے اس کی روح نکلتی ہے، کیسے اس کو قبر میں بشارت سنائی جاتی ہے، اور اس کی قبر کے ساتھ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کافر جو ہے اس کا جب وہ دنیا سے منقطع ہوتا ہے تو آخرت کی طرف جب جاتا ہے تو آسمان سے سیاہ فام فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے، ایسے موٹا ٹاٹ۔ آپ کبھی یعنی کہ ماضی میں جائیں تو اسکولوں میں جو گورنمنٹ اسکولوں میں نیچے بچھے ہوئے ہوتے تھے پٹ سن کا، جسے پٹ سن کہتے ہیں، اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت کھردرے بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک کیا ہوتا ہے؟ ٹاٹ ہوتا ہے، اور وہ منتہائی نظر تک جہاں تک نظر جائے تو منتہائی نظر تک اس ٹاٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کافر کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل۔ مومنین سے کیا کہہ جاتا ہے؟ اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن رہنے والی روح۔ یہاں پہ کیا؟ اے خبیث روح، ناراضگی، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل۔ وہ روح اس کافر کے جسم میں پھیل جاتی ہے، وہ اس روح کو اس طرح گھسیٹ کر نکالتے ہیں کہ جس طرح کانٹوں والی سلاخوں میں یعنی کہ پھنسے ہوئے گیلے اونٹ کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جس کا آیا ہے نا کہ جو کھینچ کر نکالتے ہیں، والنازعات غرقا، غرق اس لیے کہتے ہیں فامدہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو وہ انہوں نے وہی کام کرنا ہے جس کام کے لیے آتے ہیں، وہ کرنا ہے انہوں نے۔ تو وہ جیسے مرضی روح جو ہے نکلنے کی ضد کرے، کافر کی روح جو ہے جلدی نکلتی نہیں ہے، وہ ضد کرتی ہے، وہ جسم سے نہیں نکلتی، پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کے پاؤں کے ناخن سے لے کر اس کے یعنی کہ آخر تک جو ہے نا اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جسم میں پھیلتی ہے تو گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے، اور جیسے کانٹوں والی جو سلاخیں ہوتی ہیں اسے پھنسے ہوئے گیلے اون کو کھینچا جائے اس طرح سے اس کی روح کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑتے، اس کی روح کو اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، جو ٹاٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسی سے مردار کی طرح سخت بدبو نکلتی ہے، اتنی گندی کسی جیسے کبھی کسی مردار کے پاس سے گزرو جو کتنے دن کا مردہ سڑا گلا پڑا ہو تو اس کی بدبو کتنی دور سے آتی ہے، کتنی خطرناک ہوتی ہے، اس طرح اس کی روح سے اتنی گندی بدبودار اس کے کفر کی بدبو آتی ہے۔ تو پھر وہ یعنی کہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں،
तो फरिश्तों की जमात के पास जब गुजरते हैं तो वो पूछते हैं ये कौन खबीस रूह है। तो फरिश्ते बताते हैं ये फलां बिन फलां, और दुनिया में इसके बदतरीन नाम को बताते हैं, जो उसका बदतरीन नाम होता है वो नाम लेते हैं, कहते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है। हत्ता कि आसमान दुनिया में पहुंचते हैं, आसमान को खिलवाते हैं तो आसमान को उनके लिए नहीं खोला जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत मुबारक तिलावत की, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई व ला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यालिजल जमलु फिस सम्मिल खियात। सूरह एराफ की आयत नंबर 40 है। फरमाते हैं कि उन काफरों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, अल्लाह पाक फरमा रहा है, और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे हत्ता के ऊंट सुई के सुराख में दाखिल हो जाएगा। ये तो मुमकिन है कि ऊंट जो है वो सुई के सुराख से दाखिल हो जाए, ये मुमकिन है, लेकिन काफिर के लिए ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा इनको सबसे निचली जमीन सिज्जीन में दाखिल कर दो, फिर इसकी रूह को फेंक दिया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, व मन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई फतख्तफहु त्तयरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक। सूरह हज आयत नंबर 31। जिससे अल्लाह के साथ शिरक किया वो गोया आसमान से गिर पड़ा, अब या तो उसे परिंदे उचक कर ले जाएंगे और या फिर इसको हवा के दूर दराज जो है, जो हवा है वो उसको उड़ाकर दूर दराज की जगह पर फेंक देगी। ये शिरक करने वालों का हाल होगा। कुफार का हाल तो वो है कि उनको तो वैसे ही यानी कि आसमानों पे जाने ही नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो मुशरिक होगा उसके लिए भी ये कुरान पाक में सूरह हज में बयान फरमाया गया है। फिर फरमाते हैं कि इसकी रूह इसके जिस्म में लौटाई जाएगी, फिर दो फरिश्ते आकर इसको बिठाएंगे, इससे पूछेंगे तेरा रब कौन है, वो कहेगा अफसोस मैं नहीं जानता। वो पूछेंगे तेरा दीन क्या है, वो कहेगा अफसोस मैं नहीं जानता। वो पूछेंगे ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे, वो कहेगा अफसोस मैं नहीं जानता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मानने से इनकार किया तो आखिरत के जो पहले दो सवाल है वो भूल जाएगा, कहेगा मुझे नहीं पता। फिर आसमान से एक मनाती निदा करेगा, ये झूठ बोल रहा है, इसके लिए दोजख से फर्श बिछा दो। कि झूठ बोल रहा है, ये जानता है मैं इसका रब कौन है, जानने के बावजूद क्या ये इनकार इसलिए कर रहा है, उसकी जो हैबत तारी होगी, जो उसने सारी जिंदगी कुफर किया होगा, अल्लाह की नाफरमानियां की होंगी, तो अब वहां पर डर जाएगा उस हैबत से, जैसे उसकी रूह निकली थी, वो दर्द, वो तकलीफ, वो अजियत, फिर आसमानों की तरफ से वहां से लुटाए जाना, वो बदबूदार टाट में लपेटे जाना, उसकी क्या हालत होगी। अगरचे जलाकर राख उड़ा दिया जाए, कोई जानवर खा जाए, कोई हवा में उड़ा दिया जाए, जैसे कोई मर्जी, जहां पे जो इंसान पहुंचेगा उसकी कब्र वही है। तो फिर अल्लाह तला की जात निदा फरमाएगी ये झूठ बोल रहा है और इसके लिए दोजख से फर्श बिछा दो, आग का बिछोना, इसके लिए दोजख की खिड़की खोल दो, गर्म हवा आग की आएगी, फिर इसके लिए क्या करो, इसके पास दोजख की गर्म हवाएं आएंगी और इसकी कब्र तंग कर दी जाएगी, इतनी तंग कि इसकी इधर की पसलियां उधर निकल जाएंगी, और उसके पास एक बदसूरत शख्स आएगा जिसका लिबास बहुत बुरा होगा और उससे सख्त बदबू आ रही होगी। बस वो कहेगा तुम्हें बुरी चीजों की बशारत हो, ये तुम्हारा वो दिन है जिससे तुम्हें डराया जाता था। वो काफिर कहेगा तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा तो बहुत खौफनाक है, जो शर अंगेज है। वो शख्स कहेगा मैं तुम्हारा खबीस अमल हूं। यह कहते हैं ना कि इंसान, जब सूरह तकासुर की हमने तफसीर में पढ़ा था कि इंसान अपने अमल के साथ कब्र में जाएगा। तीन भाई होते हैं, एक माल होता है, एक औलाद होती है, ना माल जाएगी ना औलाद जाएगी, तीसरा अमल होता है। तो फरमाया कि ऐ सहाबा फिर तुम्हें तुम्हें सबसे कौन सा भाई प्यारा है। सहाबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो वही प्यारा है जो कब्र में उतरेगा। फरमाया तेरे अमल। अब यहाँ पर क्या है देखो, इस हदीस मुबारक के अल्फाज तमाम हवाला जात के साथ ये है, इंशाल्लाह जिनके हवाला जात जो है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ये तवील तरीन हवाला जात है। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि मैं तेरा यानी कि खौफनाक वो खबीस अमल हूँ। तब वो काफिर कहेगा ए मेरे रब क्यामत कायम ना करना। वो क्या कहेगा, या अल्लाह क्यामत कायम ना हो, पता नहीं मेरे अब क्या मेरे साथ गुजरेगी, क्या होगा। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो अता कर दे कि जिससे वो राज़ी हो जाए, ऐसा काम करने की तौफीक दे कि जिससे हमारी मौत जो है वो सहल हो जाए, आसान हो जाए, और मौत के वक़्त हमारे जिस्म से हमारी रूहें इस तरह निकाली जाए कि पानी के जो मुश्क
जिसका जिक्र अल्लाह ने किया है कि मुंह से पानी का कतरा निकलता है, रूह ऐसे निकलती जैसे मुंह से मुश्क पानी का कतरा निकलेगा, खुशबूदार होगी। और मौत के बाद बंदा मोमिन को अल्लाह ताला की ज़ात से जिन नेमतों से नवाजना है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें वो नेमत उज़्मा अता फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात हमें जान करने के वक्त कलमा नसीब फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। होशो हवास में अल्लाह ताला की ज़ात हमारी जान को ले दुनिया से, हमें हमारे होशो हवास कायम हो, हमें पता हो हमने कलमा पढ़ना है, हमारी रूहें आसानी के साथ और अपनी रजामंदी, अल्लाह ताला की रजामंदी के साथ खुशी खुशी हमारे जिस्मों से निकल जाए। फिर फरमाया कि फिर उनकी कसम जो पूरी कुव्वत से आगे बढ़ते हैं, वो कौन है? इसके बारे में जो इब्ने आदम की खैर और अमल साले को पहुंचाने के लिए जो फरिश्ते सबकत करते हैं, अमाल साले जो इंसान करता है, नेक अमाल करता है, वो तेजी के साथ उन नेक अमाल को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी कसम खाई है आयत नंबर 4 में। फरमाया फस्साबिक़ात सबक़न, सबकत ले जाते हैं तेजी के साथ, भाग दौड़ करते हैं। उनकी कसम खाई अल्लाह ताला के साथ उन फरिश्तों की। फरमाया साबिकात से मुराद क्या है? मोमिनीन की अरवाह, जो रूह, यानी कि जब वो ये रूहें देखती हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए क्या क्या तकरीम और क्या क्या खैर की तैयारी अल्लाह ताला ने की हुई है, तो वो अपने मुकर्ररा वक़्त से पहले अपने अजसाम से निकलना चाहती हैं। जैसे ही फरिश्ते आते हैं, तमाम जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ता हद्दे नज़र, यानी मुंतहाए नज़र, जब फरिश्ते उसकी इस्तकबाल को होते हैं, फरिश्तों की पूरी जमात और तमाम जन्नत के मनाजिर, तो मोमिन बजाय डर और खौफ के उसके चेहरे में पे लाली होती है, आराम से उसकी जान निकल जाती है, वो अपनी जान को अल्लाह ताला के हवाले कर देता है। तो वो सबकत ले जाने वाले जो तेजी के साथ अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं और जान को, रूह को लेकर तेजी के साथ चले जाते हैं, या फिर तेजी के साथ अमाले साले जो मोमिन बंदा करता है, वो अमाले साले को लेकर चढ़ते हैं। और इसका ये भी है कि सबकत, यानी कि ये सबकत मौत के वक़्त होगी, जब मोमिन को मौत आएगी, इस वक़्त इसमें कैदी की तरह होगा जो कैद से रिहाई, यानी कि जो कैदी रिहाई चाहता है, क्योंकि मोमिन का दिल दुनिया में लगता नहीं है, वो अल्लाह के जिक्र के बगैर रहता नहीं है, वो अल्लाह ताला की याद से कभी गाफिल नहीं होता। वो किसी हाल में भी हो, बीमारी में हो, वो खुशी में हो, गमी में हो, सफ़र में हो, खदर में हो, किसी हालत में भी हो, तो अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं होता। तो इसलिए जब अल्लाह ताला की तरफ से उसको बुलावा आता है, तो वो बहुत तेज़ी के साथ उसकी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपना सवाब जो मुझे दिया जा रहा है, जो जन्नतें मुझे मिल रही हैं, जो सब कुछ मैं मनाज़र अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ज़िंदगी में ही उसको सामने सब कुछ कर दिया जाता है, इसलिए उसकी रूह बहुत तेज़ी के साथ निकलती है। वो मलकुल मलकुल मौत के निकालने से पहले वो खुद जल्दी में होती है, निकलने के लिए तैयार होती है, इसलिए बहुत जल्दी वो उसको लेकर निकल जाते हैं। तो इसलिए फरमाया सब साबिकीन, सबकत ले जाने वाले। मोमिन मौत के वक़्त जब जन्नत में अपने सवाब को जब देखता है, तो उसी वक़्त उसकी रूह जिस्म से निकल कर जन्नत में जाना और अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करती है। और जब मौत के वक़्त अपने अज़ाब को देखेगा, उसकी रूह जिस्म से निकल कर अल्लाह ताला के जो मुलाकात को नापसंद करती है, क्योंकि वो कहर और ग़ज़ब देख रही होती है। अल मुदब्बिरात, फरमाया कि फिर उनकी कसम जो निज़ाम कायनात की तदबीर करते हैं, फल मुदब्बिराती अमरा, जो कायनात की तदबीर करते हैं। इसके बारे में फरमाया हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कि मुदब्बिरात अमरा से मुराद फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने चंद उमूर के लिए जो उनके सुपुर्द कर रखे हैं, अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको हुक्म दिया है, वो उसी के मुताबिक अमल करते हैं। तो अब्दुर रहमान बिन साबित ने कहा, दुनिया में निज़ाम आलम की तदबीर 4 फरिश्ते करते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मलकुल मौत और हज़रत इसराफील अलैहिमुस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द क्या है? वही लाना और हवाएं और लश्कर हैं। फरिश्तों के जितने भी लश्कर हैं, जिन्नात के लश्कर हैं, हवाएं हैं, ये तमाम जो काम है सारे, ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हैं। और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द बारिश और ज़मीन की पैदावार का निज़ाम है। और जो मलकुल मौत है, उनके सुपुर्द जो है वो रूहों को कब्ज़ करना है। और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द सूर फूंकना, और वो बगैर किसी अहम अमर के ज़मीन पर नाजिल नहीं होते, इंतज़ार में है सूर हाथ में लिए मुंह से लगाए, अल्लाह हुक्म दे तो बस मैं सूर फूंकूं और क़यामत बर्पा हो। अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम।
फिर फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात ने, इसमें जो लफ्ज़ आया था अन्नाशितात, इससे मुराद क्या है? मोमिनीन की अरवाह जो नहायत नरमी और आसानी से अपने जिस्म से निकल जाती हैं, और फिर वो अरवाह बशर जो ताल्लुक़ जिस्मानी से खाली होती हैं और आलम बाला के साथ इत्तिसाल की मुश्ताक होती हैं। जब वो इंसान की ज़ुल्मत से निकल जाती हैं तो आलम मलाइका और मनाज़िल कुद्स की तरफ मुसर्रत और शादमानी से बहुत तेज़ी के साथ, सुरअत के साथ, एक आन घड़ी, एक सेकंड भी मैं बोलूँ तो वो भी ज़्यादा है, उसके साथ जाती हैं और तेज़ी से रवाना होती हैं। इसलिए साबिहात, तैरने वाले, इसे तबीर फरमाया गया। तस्बीह, दाने के बाद दाना कैसे गिरता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे होता है? तेज़ी के साथ। तो ये इसलिए तैरने वाला कहा गया है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि दुनिया से मुतनफ़्फ़र होने में, आलम अलवी के साथ इत्तिसाल की मोहब्बत में इनके अरवाह के दर्जात यानी कि जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। पैमाना रखा गया है किस खलूस से, किस नीयत से, से ये नेक काम किए गए हैं, किस नीयत से ये यानी कि जो भी अमल किया गया है, जो भी सदका खैरात किया गया है, जो भी इबादत की गई हैं, वो किस नीयत से की गई हैं, कितनी मोहब्बत में डूब कर की गई हैं। फिर उन अरवाह के तमाम दर्जात होते हैं। ये सारा जो है यानी कि इसके अरवाह के मुतालिक बताया गया है। फिर जो नेक रूहें बदन से जुदा होने के बाद जो है अल मुदब्बिरात का जो है वो है कि बस जब तदबीर करना रूह के हाथ में है और इस जहान में तदबीर करती है, बस जब वो रूह बदन से जुदा होने के बाद इस जहान से बरज़ख की तरफ मुंतकिल होती है, तो इसका जो तदबीर और तासीर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? ज़ाहिर है जो जिस्म होता है वो उसकी रूह के लिए एक हिजाब होता है। जिस्म के अंदर है रूह, हिजाब है। जब जिस्म ज़मीन में चला गया और रूह जो है वो जन्नत में चली गई, तो अल्लाह ताला की ज़ात अब उसकी जो पावर है, ताकत है, बढ़ा देती है। तो वो उसकी जो पावर ताकत है, जो यानी कि जिस्म का जो हिजाब था वो ख़त्म हो गया। तो अब क्या है कि वो अपने काम सही तरीके से अंजाम देती है। जैसे अल्लाह ताला का हुक्म होता है, जन्नत में जहाँ चाहती है चलती है, फिरती है, खाती है, पीती है, जिस तरीके से चाहती है रहती है, अल्लाह के अर्श की साए तले। जैसे शुहदा की रूहें कंदीलों में लटकी हुई, जो कंदीलें लटकी हुई होती हैं, अल्लाह के अर्श के साए तले वहाँ पे रहती हैं। जैसे जब सूरज यानी कि सूरज बादलों के सामने आ जाता है, बादल जब आते हैं सूरज के सामने तो सूरज नज़र आना बंद हो जाता है, तो बादल से छा जाते हैं। लेकिन जैसे ही बादल छटते हैं तो सूरज की रोशनी कितनी तेज़ होती है। इसी तरीके से रूह का हिसाब है, जब रूह बदन से निकल जाती है, आज़ाद हो जाती है, तो अब वो जिस तरीके से मर्जी जाए। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इसके बारे में कि जिस दिन लर्जाएगी लर्जाने वाली और उसके पीछे आएगी, यौमा तरजुफुर राजिफा ततबाउहा रादिफा कुलूबुन यौमा इज़िन वाजिफा। जिस दिन क्या होगा? कांपेगी कांपने वाली, पीछे आएगी उसके पीछे आने वाली, यानी कि जलजले, और कई दिल उस दिन धड़कने वाले होंगे, दिल धड़क रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह ताला ने इस पे यहाँ पे ये बताया है कि तुम जो इनकार कर रहे हो क़यामत के दिन का, तो ये वक़्त जो है ज़रूर आकर रहेगा, तुम ज़रूर ज़िंदा उठाए जाओगे। जिस दिन लर्ज़ाएगी लर्ज़ाने वाली, ये ज़लज़लों का ज़िक्र है। ततबाउहा रादिफ़ा, फिर उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली। राजिफ़ा का जो लुग़त में माना दिया गया है वो है हरकत, जिसके बारे में कुरान पाक ने फरमाया है यौमा तरजुफुल अर्दु वल जिबाल, सूरा मुज़म्मिल में आयत नंबर 14 में फरमाया है जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थर थराएंगे। और इसी का जो दूसरा माना है वो है गर्दार आवाज़ या होलनाक आवाज़, जिसको कुरान पाक में फरमाया है फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, सूरा एराफ आयत नंबर 91 में, बस उनको होलनाक कड़क ने पकड़ लिया। अब देखिए ये जो आयात है इनमें क़यामत के अहवाल अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाए हैं कि राजिफ़ा पहली बार सूर में फूंकना और फिर इसके बाद लर्ज़ाना, फिर सूर फूंकने से दुनिया लर्ज़ने लगेगी। एकदम से जब सूर फूंका जाएगा तमाम दुनिया के तमाम जितने भी निज़ामात हैं सब ही लर्ज़ने लगेंगे, ज़लज़ला इतना शिद्दत से आएगा। फिर जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो वो इतना शिद्दत से होगा कि ज़मीन के जो तमाम मुर्दे हैं वो जिंदा हो जाएंगे, कब्रों से निकल आएंगे। फिर फरमाया वो कहते हैं कि हम ज़रूर मरने के बाद ज़िंदगी की तरफ लौटाए जाएंगे। सूरा नाज़ियात की जो है आयत नंबर 10 है कि वो कहते हैं कि हम लौटाए जाएंगे। यक़ूलूना अइन्ना क्या
सवाल करते हैं कि हम लुटाए जाएंगे, तो हंसी मजाक करते थे ना। व इज़ा कुन्ना इज़ामन नाखिरा क़ालू तिलका इज़न कर्रतुन खासिरा। फरमाएगा कि क्या हम हो जाएंगे बुसीदा हड्डियां, कहते हैं ये तो फिर खसारे वाली बात होगी। कि नबी की जब आयत लाओ फरमाते तो हंसते थे, कह के लगा के ये क्या बात कर रहे हैं कि हम वापस उठेंगे, क़यामत आएगी तो हमारी बुसीदा हड्डियां हो चुकी होंगी, गल सड़ चुके होंगे, तो ये कहाँ से ऐसे हो सकेगा, कैसे मुमकिन होगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने इसलिए फरमाया कि ये ऐसे कह रहे हैं कि हम हड्डियां हो जाएंगे, तो ये तो होकर ही रहेगा। यानी कि इंसान जिस रास्ते आया है, खाफिरा का माना क्या होता है, हाफिरा जिस रास्ते से आया है उल्टे पांव उसी रास्ते पर चलेगा, उसी रास्ते से वापस। जैसे वो पैदा हुआ था, पहली बार चीज बनाना मुश्किल होती है, जैसे सेकंड टाइम बनाना मुश्किल होती है। बच्चा कोई भी ड्राइंग बनाता है, कोई भी चीज आप बनाते हैं या कोई भी आप चीज पकाते हैं, जो चीज आपने पहले कभी नहीं पकाई होती, जब वो रेसिपी आप ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, सेकंड टाइम आप बनाते हैं तो आप उससे भी अच्छी बनाते हैं, और भी ज्यादा जायका अच्छा होता है। या बच्चा जब एक फर्स्ट टाइम कोई चीज ड्रा करता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल उसको लगती है, वक्त भी ज्यादा लगाता है, लेकिन जब वही ड्राइंग दोबारा करता है तो फिर क्या होता है, वो तेजी से कर लेता है और ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है। तुम्हारा जब कोई वजूद नहीं था, अल्लाह पाक की ज़ात ने तुझे यानी कि पैदा फरमाया, और अब एक पैदा पुदा शुदा इंसान को, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात से खुद ख़त्म कर दिया गया, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए यहाँ पर हाफरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पहली हालत उल्टे पाँव से लौट आना। तो क्योंकि मुश्किल क्या कहा करते थे, फिर फरमाया वो कहते हैं कि फिर तो बड़े खसारे की वापसी होगी, अगर ऐसा हो गया फिर तो बड़ा खसारा होगा। हसन बसरी जो है फरमाते हैं कि इस कौल से मुशरिकीन ने मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार किया, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मुशरिकीन के कौल का ये माना यह है कि जैसा कि मुसलमानों का गुमान है, अगर हमको दोबारा जिंदा किया गया तो दूसरी जिंदगी मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होगी। अब वो समझते थे कि अगर अल्लाह ताला के इतनी इबादत गुजार ये बंदे हैं, जैसे सहाबा कराम जाम शहादत नोश कर रहे थे, जिसी के से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात में शिरकत फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक भी शहीद हुए, आपका बदन भी ज़ख्मी हुआ, इतनी मुशक्क़तें सहाबा कराम ने इस्लाम के लिए उठाई। इस तरह से जो शुहदाए करबला है, अहले बैत अतहार, उनके रास्ते में कितनी मुश्किलें, कितनी रुकावटें आई। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखो ज़हर दिया गया, हज़रत इमाम हुसैन को किसी कैसे बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, आपके पूरे खानवादे को कैसे शहीद किया गया। तो ये कुफार कहते हैं अल्लाह तो कोई इतना ही चाहते हैं, अल्लाह के इतने चहीते, इतने इबादत गुजार, इतना, तो ये फिर हम तो बड़ी पूरी ऐश आराम में हैं। तो अब इसका वो ऑपोजिट लेते थे, वो कहते थे कि हम ज्यादा चहीते अल्लाह ताला के हैं, हमें अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा हुआ है, हम ज्यादा यानी कि अल्लाह ताला को प्यारे हैं, हमें तो कोई मुशक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं आती, इनको सब आती है। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के प्यारे ही अल्लाह अल्लाह ताला उन्हीं को ही आजमाता है, वही आजमाए जाते हैं, कभी माल के नुकसान से, कभी जान के नुकसान से, कभी फलों के नुकसान से, कभी खौफ के नुकसान से। सूरह बकरा में आपने पढ़ा सारा। अल्लाह ताला की ज़ात अपने प्यारों को, जो अल्लाह ताला के पर तवक्कल करने वाले होते हैं, ईमान रखने वाले होते हैं, उनको आजमाइश में डालकर जो वो ज़िंदगी में गुनाह कर लेते हैं, उन गुनाहों को दुनिया में ही धो दिया जाता है, दुनिया से ही माफ़ कर दिया जाता है। तो ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ये क्या गुमान करते थे कि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में दुनिया की जिन नेमतों से नवाजा है, इसकी यही वजह है कि अल्लाह ताला इनके नज़दीक इनका दर्जा और मर्तबा मुसलमानों में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा है, कि ये जायज़ नहीं कि अल्लाह ताला अपने औलिया तो पर जो है उनकी तो मईशत तंग कर दे, उनकी रिज़्क रोटी तंग कर दे, और अपने दुश्मनों पर जो है ना मशीयत जो है वो वसी कर दे। और जब उन पर दुनिया में यानी कि रिज़्क को कुशादा कर दिया जाए, तो उनके ये गुमान था कि ये दुनिया यानी कि दुनिया में इनकी फजीलत जो है वो तो दुनिया में इतनी ज़्यादा है, तो आखिरत में अल्लाह ताला की ज़ात और बढ़ा देगी। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर 14वीं जो आयत है इसमें फरमाया कि फिर वो अचानक हशर के खुले मैदान में होंगे, अचानक क़यामत आएगी, सूर फूंका जाएगा, एक डांट आएगी, फ़इन्नमा हिय ज़जरतुम वाहिदा, एक डांट आएगी, एक सूर फूंका जाएगा, एक लर्जा देने वाली आवाज, खौफनाक चीख होगी, जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से लगाएंगे। तो यका यक वो सब होंगे मैदान हशर में जमा, फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। हल अता का फिर आगे हदीस मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमा दिया, हल अता का हदीस मूसा। तो क्या होगा कि जब ये यानी कि एक डांट आएगी तो क्या होगा कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो फिर फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात ने, आखिरी आयत में करूंगी इसकी, हल अता का हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा।
अब ये क्योंकि कुफार जो थे मुस्तकिल इनकार कर रहे थे, मौत का इनकार कर रहे थे, आखिरत का इनकार कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हट धर्मी दिखा रहे थे, तो मजाक बनाते थे ईमान वालों का। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाने के लिए, आपको हौसला देने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने, और चूंकि कुफार मक्का फिरौन का और हामान का, ये सारे जो पीछे समूद हैं, ये सारे जो पीछे बड़े बड़े बादशाह जिन्होंने खुदाई दावे किए थे, शद्दाद था, सब जानते थे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब ये वाक़या जिक्र करके, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले भी बड़े बड़े कुफार और बड़े बड़े खुदाई दावे करने वाले गुजरे हैं, जिन्होंने मेरे हुक्म का इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया कि कुफार मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार पर बहुत इसरार कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं तिल का इज़ा कर रहा तुम खासिरा, फिर तो आखिरत की तरफ लौटना बहुत खसारा होगा। तो ए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका मुसलसल इनकार आप पर बहुत शाक गुजर रहा है। तो अल्लाह ताला ने ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया, आपको तसल्ली दी कि फिरौन की दावत देने में मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मुशक्कत उठाई थी, और फिरौन भी आखिरी वक्त तक अपना इनकार पर जमा रहा था। आप परेशान ना हो, आप गम ना करें। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत देने में इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिरौन कुफार मक्का से ज़्यादा कवि और जाबिर हुक्मरान था, इसके पास बहुत बड़ा लश्कर था, इसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, और इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द कर दिया, इसके मुकाबले में सरकशी की। इसका जाहो हशम, इसकी बड़ी सल्तनत, इसका लश्कर इसके कुछ काम नहीं आया। अल्लाह ताला ने फिरौन के इस लश्कर को, यानी कि आप सब जानते हैं कि लश्कर समेत इसको समंदर में अल्लाह ताला की ज़ात ने गरक कर दिया, और दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको इबरत का निशान बनाया। आप देखिए अभी तक भी उसकी लाश पड़ी है मिस्र के म्यूजियम में। क्यों? कि उसने खुदाई का दावा किया था, उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तुम्हारा सबसे बड़ा रब मैं हूं। वो क्या करता था? वो बनी इसराइल के लड़कों को जिंदा, यानी कि वो मरवाता था, कत्ल करवाता था। 40 साल तक अल्लाह ताला की जात ने फिरऔन को मोहलत दी है, 40 साल तक, ताकि ये लौट आए, ये मुआफ़ी मांग ले, ये पलट आए, ये जो मेरा नबी मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास दावत पेश कर रहे हैं, उस दावत को कबूल कर ले, दावत हक को कबूल कर ले। लेकिन उसने कबूल नहीं की। इसलिए फरमाया क्या आपके पास मूसा की खबर पहुंची है जब इनके रब ने वादी तुवा में उन्हें निदा दी? अब ये तुवा का जो लफ्ज़ है, ये तुवा शाम की एक वादी का नाम है, जो तूर का जो पहाड़ है उसी के पास ये वादी है। जब रात के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात ने निदा फरमाई थी, आप फिर उनके पास जाएं, तुवा वादी मुकद्दस, जिसमें 2 मरतबा ये इनके अल्लाह ताला की ज़ात ने बरकत डाली है। फिर ये कुछ का कहना है कि ये कोहे तूर पहाड़ के साथ है, और कुछ का कहना है ये तुवा वादी जो है मदीना और मिस्र के दरमियान में एक वादी है, मदीना और मिस्र के दरमियान में एक वादी आती है, वहाँ पर है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया आयत नंबर 17 में कि आप फिरौन के पास जाएं, बेशक इसने सरकशी की है। तग़ा, तग़यानी कहते हैं, समंदर में तग़यानी आई हुई है, तग़ा इसी से निकला है। इसका माना होता है कि हद से तजावुज़ करना, सरकशी करना। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि इसने अल्लाह ताला के मुकाबले में तकब्बुर किया है, काफिर हो गया है, इसने बनी इसराइल के मुकाबले में हद से तजावुज़ किया है, और फरमाया कि इसने खालिक और मखलूक दोनों के मामले में हद से तजावुज़ किया है। जो गरीब लोग थे, कमज़ोर लोग होते थे, ईमान वाले होते थे, उनको मरवाता था, और जो उसके पैरोकार होते थे उनको जिंदा रखता था। दुनिया में जन्नत दोज़ख बना ली थी, जुल्म करता था, हत्ता कि खुदाई दावा किया। ये हद से तजावुज़ करना हद से बढ़ गया है। जाएं आप जाकर उस पर दावत पेश करें, लेकिन वो नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया आप उसे कहें कि गुनाहों से पाक होने के मुतल्लिक तेरी क्या राय है? ए मूसा, जाओ उसके पास जाकर उससे पूछो कि अगर तू गुनाहों से तू लौट आएगा, तू माफ़ी मांग लेगा, तो क्या होगा? तुझे अल्लाह ताला की ज़ात गुनाहों से मुआफ़ फरमा देगी। जाके पूछो उससे। लेकिन जिसको नहीं हिदायत आनी होती, उसको नहीं आती, उसको नहीं आनी थी, उसको नहीं आई। अल्लाह ताला फरमाता कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लिया। जो इंसान गुनाह कर लेता है और जब वो तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, गुनाह को छोड़ देता है, गुनाहों को छोड़ना ही तौबा होती है।
چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی معاف فرماتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تلقین کی کہ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرو. فَقَوْلًا لَهُ قَوْلًا نَبِيًّا، پس تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو، تم دونوں جاؤ نرمی سے بات کرو. اب دیکھیں اس سے کیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف انسان کو دعوت دینی ہو، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف اس کو بلانا ہو، تو جو عام دائی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو کیا چاہیے کہ سختی سے بات نہ کرے، نرمی سے بات کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورۃ آل عمران 159 میں فرمایا اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس بھاگ جاتے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مبلغین لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعصب سے کام لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے انبیاء کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی نرمی کر رہا ہے، بہت زیادہ برداشت کر رہا ہے، بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے اور برعکس یعنی کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی تو پکڑ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی سختی آپ نے دیکھی کہ کیا کیا حالات جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستایا، یا ایمان والوں کو صحابہ کرام لے لیں، یا صحابہ کرام کے بعد آنے والے جو تابعین لے لیں، تبا تابعین لے لیں، صالحین لے لیں، اولیاء لے لیں، آپ کو یعنی کہ ہزاروں کے حساب سے ایسے واقعات ملیں گے جنہوں نے ان کو ستایا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لیا. پھر فرمایا میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو سو تم اسی طرف ڈرو. اللہ نے فرمایا پھر انہوں نے بہت بڑی نشانی دکھائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو نشانی کا جو ذکر فرمایا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا، جو زمین پر ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، اس کے اجزاء اس کے جسم سے بھر جاتے تھے، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی قدرت اور بہت شدید طاقت ملتی تھی، اور وہ اژدہا بہت ساری چیزوں کو نگل جاتا تھا. جب اسے سارے جو تھے جادوگر جمع کر لیے تھے تو اس وقت کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کی کو سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے سارے کفار مکہ جو ہے نا واقف ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ فرعون کے دور میں کیا ہوا تھا، کس نے سرکشی کی تھی. تو اصحا کا اللہ کی ذات نے جہاں پہ ذکر فرمایا، یعنی کہ یہ بہت بڑی اللہ کی ذات سے نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ید بیضا عطا کیا ہوا تھا. پھر فرمایا اللہ کی ذات نے سو اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی. آیت نمبر کون سی تھی؟ آیت نمبر 21 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے اس نے دیکھے، دعوی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو دکھائے اس کو، اس پر اس نے تکذیب کر دی، انکار کر دیا. پھر فرعون نے شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والوں کو بھیج دیا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، حشر اسی سے نکلا ہے جمع کرنا، حشر جمع ہو جانا. تو اس نے پیٹھ پھیری، ان کے خلاف کارروائی کی. سورہ 22 اس کی آیت ہے. جب فرعون کو اژدہے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ مرعوب ہو کر بھاگا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیٹھ پھیری اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مشغول ہو گیا کہ اب اسی کارروائی کیا کرنی ہے. معجزہ دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی نے جو دیا تھا، ید بیضا دیا تھا، جو اژدہا دیا تھا، معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اس نے الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے ان کی کارروائی کرنا شروع کر دی کہ ان کے مشن کو ناکام کیسے بنانا ہے. آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا اس نے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا، پس کیا کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا. پھر انہوں نے دوسرے شہروں میں کیا کہ جادوگر بلوا کر پھر جس مقام پر تمام جادوگر جمع ہوئے اس میدان میں اس نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور زیادہ ہر درمی میں اٹ گیا. آیت نمبر 25 اور 26 فرمایا پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیا، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے. آپ جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. تو فرعون یعنی کہ اس نے دعوے کیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اس کے عذاب کی گرفت میں لیا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم یا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جب فرعون نے پہلا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی گرفت میں نہیں لیا، بلکہ اس کو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہلت دی تھی، اور جب اسے 40 سال تک بھی رجوع نہیں کیا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سے بڑھ کر دعویٰ کیا تو اس نے اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو عبرت ناک عذاب میں گرفتار کیا.
تو हज़रत हसन और कतादा इस तफसीर के बारे में फरमाते हैं कि आखिरा और उला का माना ये है कि इसे आखरत और दुनिया के अजाब ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दुनिया में उसको समंदर में गर्क कर दिया गया और आखरत में उसको दोजख में डाला जाएगा। अभी आप देखते हैं कि उसके जिस्म पर देखो अल्लाह ताला की तरफ से वो जिल्द नई जिल्द आती रहती है, उस पर मोटे मोटे चूहे छोड़े जाते हैं, वो जिल्द सारी खा लेते हैं, उसका पूरी स्किन खा लेते हैं, फिर उसको मसाले मसूले लगा के फिर उसको रख दिया जाता है। देखें उसको किसी की तौफीक नहीं हुई कि उसको पुर्दे ज़मीन कर दे या समंदर में बहा दे या आग में जला दे, जैसे कुफार करते हैं, कोई आग में जला के मारते हैं, कुछ किस तरीके से वो यानी कि करते हैं। लेकिन उसके बारे में किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया, किसी की तौफीक ही नहीं हुई कि इसके जो मम्मी रखी हुई है, जो जिस्म उसका रखा हुआ है, उसके साथ इस तरह से करें। नहीं, तौफीक नहीं हुई, ना हो सकेगी, क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब अल्लाह ने दिखाया कि खुदाई दावे करने वालों का, अल्लाह के नबियों का इनकार करने वाला का जो है वो दावा क्या है। तो फरमाया कि इसमें डरने वालों के लिए ज़रूर इबरत है। अब देखिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का जो किस्सा बयान फरमाया है, और फ़िरऔन को जो रुसवा किया और मूसा अलैहिस्सलाम को इज्जत दी, तो अल्लाह ताला डरने वालों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि इसमें इबरत है। जो भी शख्स अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकशी करे और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तकजीब करे, वो फ़िरऔन से दो चार होगा। हमें भी अगर हम कोई आयत कुरानिया जान लेते हैं, अहकाम रब्बी जान लेते हैं, हमें पता हो कि नमाज 5 टाइम की फ़र्ज़ है, मुसलमान होकर भी नमाज़ों से गाफिल हैं, हमें पता है कि पर्दा करना चाहिए। सूरा नूर में और दीगर जहाँ मुकामात में अल्लाह ताला के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी अज़दवाज ने, बिन्नात ने, तमाम सहाबियात ने पर्दा किया है। फिर हम जो है ना अपने पास से अपनी अपनी राय पेश करें, उन आयात की तावीलात पेश करें। आँखों में हया होनी चाहिए, नज़र का पर्दा होना चाहिए। तो बस उनको ये रखना चाहिए कि सहाबियात और अज़वाज मुतहरात और बिन्नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी पाकीज़ा बीबियाँ, बापर्दा और बाहयात बीबियाँ, उनकी आंखों में हया नहीं थी, उनके दिलों में पर्दा नहीं था। ये तावीलात पेश करनी होती अपने पास से। सूद हराम है, रिश्वत हराम नाजायज़ अमल है, झूठ, चोरी, ग़ीबत, बुहतान, तमाम वो काम जिनकी तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, हम मुसलमान होने के बावजूद, हमारा एक रब पर ईमान, हमारा एक किताब पर ईमान, हमारा अल्लाह के रसूल पर ईमान, हमारा ज़िंदगी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान, हमारा कब्र में सवालात जवाबात के पर ईमान, हमारा ये भी ईमान कि जब चाहे रब हमारी जान खींच ले, हमें अपने रब के सामने खड़े होना है। हमारा ईमान का तो ये आलम है। लेकिन अमल 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 की बात हो रही है कि अमल कैसा। तो ये नाफरमानों के लिए निशानियां, इबरत की ये आयात जो थी, इबरत का निशान है। अल्लाह ने फरमाया कि इससे इबरत पकड़ो कि सरकशी अल्लाह के नबी के अहकामात के सामने, यानी कि हट धर्मी, तकब्बुर, गुरूर, यही तो होता है। मरेंगे देखी जाएगी, मरेंगे देखी नहीं जाएगी, तब फिर अपना आप ही देखेंगे, कोई आपको नहीं देखेगा। अल्लाह ने ऐसा पर्दा रखा है, देखेगा कोई नहीं, सुनेगा कोई नहीं, कब्र तंग इतनी कर दी जाएगी, आवाज बाहर नहीं आएगी। पुकारेंगे तो कोई पुकार सुनने वाला नहीं होगा, प्यासे होंगे कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। कब्र की घुटन और हैबत ये आज ही महसूस करें, आज महसूस करेंगे, आज ले पर उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज अल्लाह ताला की तालीमात पे, अल्लाह के नबी की तालीमात पर अमल करें। आज हम उनसे उनकी पनाह लें, आज हम उनकी तालीमात को सीखें, समझें, उसके मुताबिक यानी कि अमल करें, जिंदगियां गुजारें। फिर ना मानेंगे, क़यामत को अगर मान गया, आज हम हमारे टाइम है, वक्त है, जिंदगी पता नहीं कितनी मोहलत बाकी है, लेकिन आज वक्त है, फिर भी कल को वक्त नहीं रहेगा।